gentlemen, you are not ready for this. I'm a king, but I pop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your ears ring. One and only, calling out all the phonies, gold at my ball. He's invincible, he's मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जूडो का सेंसरी ऑडिट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टोर विजिट किए और हम लोग ने एनालाइज किया कि क्या गैप्स, क्या फ्यूचर रिकमेंडेशन और कैसे सस्टेनेबिलिटी के साथ जूडो आगे काम कर सकता है। जिसमें हमने एज ए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सीपी प्रोडक्ट ब्रांड पोजिशनिंग और टारगेटिंग जो हुआ मार्केट में कि कैसे आप फोकस करेंगे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसी बात हम लोग आज एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें ये सूरज से पूछना चाहूँगा कि आपने क्या विजिट किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि वीडियो में ऐसा क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? Basically, I see this visual. Visual on Judo is seen like very simple but low cost design, and the lights are bright but does not feel premium, and they arrange product in category wise, so which help customer to easily find the product, and they are well for the price especially because their price tags are visual, so it's help customer for their affordable products. From the sound perspective, there was background music, but it was very subtle and genuine. So this does not create any emotional impact on the customer experience. This may be because Google focuses on quick shopping rather than creating luxury experience. The touch experience was average. Fabric quality was decent, but not premium. This follows their value for money strategy. Customers visit Zudio mainly for their pricing, not for luxury. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमने जूडो में देखा है, कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान ले रहे जा रहे हैं, मतलब जो ब्रांड लगा है जूडो के पीछे टाटा का ब्रांड जो है दिख नहीं पा रहा। एज ए कस्टमर मैं भी जब वहाँ स्टोर विजिट किया तो चीज़ें देखा कि जो स्टाफ्स है वो फैमिलियर नहीं है, कैसे आप इंकरेज करें कस्टमर को, कैसे आप चीज़ें खरीदें कस्टमर को, ये वो प्रमोट करने से थोड़ा सा चूक है, जिस कारण से जो इमोशनल इफेक्ट है कस्टमर के प्रति जूडियो के लिए वो थोड़ा कम होता है। जो वीडियो है उसका जो ब्रांड एक्सपीरियंस है वो अच्छा है कि नहीं है, क्या लगता है? We are small target customer. Judio is follow a CVD model. According to this model, Judio has a strong brand awareness and they have strong brand registry for their affordable fashion brand. I agree, but brand awareness is not just enough. Brands should focus on creating an emotional impact because according to the CBE model, brand resonance is the highest level of the model. I think we should understand their strategy. Zudio is not trying to be Zara. It focuses on low price and mass market. So the experience is intentionally kept simple. एग्जैक्टली उनका जो ब्रांड उतरा है उस हिसाब से ट्रेंडी फैशन एट नो प्राइस, तो ये हमारा जस्टिफाई करता है प्रोडक्ट्स की कैसे अपना प्राइस सेगमेंटाइज करके उस पर रख रहे हैं, कस्टमर को कैसे ट्राई। So let's find the gap between the brand promise and actual experience. Judio promise trendy fashion, but sometimes the clothes look like repetitive, so the satisfaction level of customer also decrease, and it also impact the brand value of the Judio. So it's basically become a poor point for the Judio. There were limited trial rooms, इसकी वजह से वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए Zudio कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेसिकली कम हो रहा था Zudio। Staff engagement was almost zero. There was no upselling of the products. ओवरऑल जो गैप है बीच में है, स्ट्रॉन्ग के पास जो सबसे बड़ा है वो स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके कारण वीक इमोशनल कॉन्टैक्ट जो है कस्टमर के साथ रहता है। तो इन फ्यूचर इसको यदि देखते हैं यूनिक ट्रेंड के हिसाब से जो Zudio चलती है, तो जो उनका ब्रांड रिकग्निशन है वो इसके कारण घट सकता है। हाँ घट तो सकता है, क्योंकि मतलब Judio का जो प्राइस है, मतलब प्राइस पॉइंट पे मतलब Judio देखता है, क्योंकि वो मतलब ट्रेंडी फैशन भी मतलब प्रोवाइड कर रहा है
और मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा मतलब इन सबको टक्कर देता था, तो वो प्राइस पॉइंट भी मतलब कहता था, प्राइस पॉइंट उसका हाई हुआ तो कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगी बाद में। कस्टमर को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसमें जो जैसे क्लोथ्स होती है हाँ। वो अच्छी नहीं है उसके, तो वो कौन खरीदेगा? क्वालिटी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट जूडियो का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो जो ओवरऑल मार्केट सेगमेंटाइज है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे वो मैसिवली कम रेट्स पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसके कारण भले उनके रेट्स 2% या 4% जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो थोड़े बहुत इधर उधर हो, लेकिन जो प्राइस पॉइंट उन्होंने उसको लॉन्च किया, रिलीज किया है मार्केट में, वो एक बेटर टाइप कह सकते हैं मार्केट में एज फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। बट बहुत कम प्राइस पॉइंट का ये भी मतलब नहीं कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम कर देंगे, क्योंकि ऑलवेज वीडियो में मैंने देखा है कि कस्टमर कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली है, बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसकी वजह से नहीं कम कर सकते। स्टूडियो में हमेशा बहुत ज़्यादा बिलिंग बहुत लंबी लाइन होती है, ट्रैवलिंग बहुत कम है, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है कस्टमर्स को, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मैं जैसे ये मैं देखा हूँ कि वीडियो में बेसिकली वो लोग है ना जिनके पास मतलब अच्छे अच्छी क्रॉप को लेकर पैसे नहीं जैसे ज़्यादा सही ले सकते हैं या चैलेंज नहीं कर सकते वो वहाँ जाता है, तो वो मतलब जैसे ये होता है कि कुछ ट्रेंडिंग है क्रॉप के पास आ जाए वो कम पैसे में है, तो मतलब वो इतना ही सब ध्यान नहीं देते मतलब कि लाइफ कैसी है क्या है, उनको बस ये होता है मतलब कि कम पैसे में अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, बस वो कितना देंगे और कुछ नहीं है। इंडिया में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, तो सबको चीप और अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, तो इसमें जोड़ी का कंपैरिजन है नहीं दुकान का, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा हाँ एडवांटेज। क्यों let's now talk about just sustainability, like how you will grow in their future from their prices. As we all know that in India, fast fashion is very growing rapidly. So Zudio has a very great opportunity in India for their expansion. So help Zudio for their expansion. But there is a lot of competition because from the companies like Reliance Trends and Myntra. So if the studio does not improve its customer experience, customers may switch to other brands. For long-term success, Zudio must balance between low cost and better customer experience. लगता है कि जैसे ब्रांड जो है मतलब जूडियो, तो वो प्राइस से ही नहीं होगा, स्टैंड नहीं करेगा, वो स्टैंड नहीं करेगा वो फ्यूचर के लिए, तो प्राइस के अलावा भी कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको। तो अभी इंडिया जैसे देखा जैसे मिडिल टॉप क्लास है, तो जैसे उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्राइस बहुत मैटर करता है, तो उनके लिए प्राइस उनको उतना नहीं पैसा मिल सकता है, वेस्ट करे पैसे उनके अपना जो अच्छे प्रोडक्ट ले सके, वो अगर कम पैसे में अच्छे प्रोडक्ट है उनके लिए वो भी अच्छा है और ये रैपिड ग्रो करे। इसके पहले हम और भी बहुत से ब्रांड के जैसे टाटा का डिस्टर्ब लग गया, रिलायंस का डिस्टर्ब लग गया, उसमें भी हम सस्ते प्रोडक्ट मिलते तो भी सस्ता अच्छा लगा, तो ऐसे जो भी मतलब पूरे भी ग्रो करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं तो फास्ट फैशन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो उसका इंडिया में डिमांड मिल रहा है। I believe कि Zudio of course बहुत अच्छा grow कर सकता है due to its affordable pricing strategy, but जिस हिसाब से आज की जनरेशन है, they value brands like जो ज़्यादा environment पे भी focus कर सकते हैं, sustainability पे focus करते हैं, तो अगर Zudio ऐसी practices करता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा sustain कर सकता है। जूडियो की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करें, तो हम जूडियो को कैसे एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं, ये क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं? हम लोग इसमें तो बेसिकली फोकस मैंने कि स्टोर का एक्सपीरियंस को हम लोग अच्छा होता है, जैसे कि मतलब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइटनिंग उसकी मतलब ब्राइट है, बट वो मतलब जैसे प्रीमियम फील नहीं दे रही है, तो लाइटनिंग को हम लोग लाइटनिंग थोड़ा प्रीमियम फील लाना पड़ेगा। ट्रायल जैसे कि ट्रायल जैसे है मतलब वो अच्छी नहीं है, मतलब कम है ट्रायल, तो वेटिंग मतलब ज़्यादा हो रही है तो कस्टमर, उसके लिए हम लोग जैसे कुछ और ट्रायल टूल्स भी कर सकते हैं,
मतलब स्टोर का एक्सपीरियंस वो बढ़ाते हैं, उससे मतलब ये होगा कि कस्टमर और आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और मतलब जूडियो का सेल्स मतलब ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसका ब्रांड अवेयरनेस भी थोड़ा ज़्यादा होगा, एक तरह से जूडियो का हेल्प करेगा। Video can introduce personalization through loyalty programs or CRM, which is customer relationship management. It improves overall customer retention. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे मीन्स जो वीडियो का वो है डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन आनी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट आनी चाहिए, जिससे क्या है जो अभी ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, तो उसके कंपेयर कर सके उससे या फिर कंपटीशन कर सके। सो ओवरऑल जैसे हम लोग ने वीडियो विजिट किया और हमारे पूरे टीम ने ये रियलाइज किया है कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग स्टाफ है, जो उनके फैन है कस्टमर के, वो भी अच्छे से वेल ट्रेन है। स्टूडियो में इस पार्ट पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कैसे स्टाफ को ट्रेन करके कस्टमर को आप अट्रैक्ट करें चीज़ों को। Let's talk about MBA management perspective, that how brand management work in a day. सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली होता है कि आपके ब्रांड को लोग जान रहे, पहचान रहे, अवेयर है सब चीज़ों के बारे में। तो ज़ूडियो के बारे में तो बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस है ड्यू टू इट्स लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। Studio has a strong brand positioning as an affordable fashion brand because they provide fashionable trending products to their customer in low price segment. So it's basically position themselves as a small trending fashion affordable brand. So the major point is a strong low-cost strategy. Studio is providing a decent quality material at affordable price. Blue Studio is successfully positioned as a budget-friendly fashion brand with strong accessibility. But it lacks emotional impact and premium experience. My final conclusion is that Studio have follow some strategy like they have to improve their brand image and lighting and their long queues for better experience. So it's helped Studio basically to improve or recover their brand value and image. मेरे को जहाँ तक लगता है कि जैसे जो Studio को है, एक तो बेटर सक्सेसफुल ब्रांड है, तो ठीक है Studio, लेकिन वो अपना जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करें और अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें, जो नए डिज़ाइंस लेके आए हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जिससे क्या है वो कनेक्शन बढ़ेगा कस्टमर्स के साथ वगैरह। So talking about all that you have panel discussion अभी देखा और नेक्स्ट विजिट किया और एनालाइज किया कि तो स्टूडियो जो है वो एक बेटर स्ट्रैटेजी ब्रांड होता है चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं जो प्राइस पर्सपेक्टिव है उनको थोड़ा वो ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट का क्वालिटी और जो प्राइस है दैट वाज ओके, बट जो मेंटेलिटी है कस्टमर का उनको भी कहीं ना कहीं अचीव करने में वो मदद है। Thank you, everyone, and thank you to Zishan sir for this panel discussion that we had. थैंक यू।